Hello everyone. So in the last class, we discussed what are black body radiations and we also saw the derivation of Planck's radiation law. Now today we'll start with the another important topic of unit 2, that is Bose-Einstein gas. This is the most important topic of unit 2. Now what is Bose-Einstein gas? What we'll do here? Now, Bose-Einstein gas means this will follow the Bose-Einstein statistics. तो Bose-Einstein gas कौन सी होती है? A gas, or we can say a system that is composed of bosons. Now, what are bosons? Bosons are the identical or indistinguishable particles which are having zero or integral spin. ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, दिस असेंबली ऑफ बोसॉन्स जो है दिस इज नोन एज अ बोस-आइंस्टीन गैस. तो यहाँ पर जो है अब हम बोस-आइंस्टीन गैस स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है विच इज कंपोज्ड ऑफ बोसॉन्स, विच इज कंपोज्ड ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल particles which are having integral spin. तो उसके लिए व्हाट वील कंसीडर, देखो सबसे शुरू में क्या लिखा है, बोस आइंस्टीन एंड फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशंस आर नॉट यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ ऑर्डिनरी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर गैसेस. अगर हमारे पास कोई एक ऑर्डिनरी सिस्टम है विच इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो उन केसेस में जो है वी डू नॉट नीड बोस आइंस्टीन एंड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स. दो सिस्टम्स विच आर हैविंग ऑर्डिनरी एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन इट, they can be easily studied with the help of Maxwell-Boltzmann statistics with sufficient accuracy. मैंने ये चीज पहले बताई थी that how identical particles जो है they become indistinguishable and how they become distinguishable. If they are acting as distinguishable, then we can apply the Maxwell-Boltzmann statistics. If these identical particles are behaving as indistinguishable particles, then we have to use Bose-Einstein and Fermi-Dirac statistics depending upon the particles to study the system. If particles are bosons, we apply Bose-Einstein statistics, and if particles are fermions, then we apply Fermi-Dirac स्टैटिस्टिक्स. तो ये हम ऑलरेडी पहले देख चुके थे कि किस सिचुएशन में आइडेंटिकल पार्टिकल्स जो हैं दे कैन एक्ट एज डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स. Next, an assembly of bosons. Okay, that means we are talking about indistinguishable particles having zero or integral spin. So an assembly of bosons जो है that is known as a Bose-Einstein gas. Now here we are considering a perfect Bose-Einstein gas. यहाँ पर हम perfect gas consider कर रहे हैं. Let's say it is composed of n number of bosons. ठीक है ना, यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या है कि we have different energy levels, we have different energy states. This is quantum statistics, so we can say that we have different quantum states. Let's say जो first state है इस पे जो particles present है they are having energy U1, and the number of particles that are staying in the first quantum state or the energy state, let it be N1. Similarly here we have N2 number of particles, and the energy corresponding to each particle in the second quantum state will be U2. Similarly, we have total I quantum states. So for this ith quantum states, the number of particles residing in this quantum state will be Ni, and the number of, and the energy corresponding to each particle in this quantum state is Ui. इसके ऊपर if I increase the energy states, तो हमारे पास depending upon energy जो है हमारी बढ़ती जाएगी और उसी हिसाब से number of particles हमारे होते जाएंगे. ठीक है, so here let the particles जो हैं they are distributed among quantum groups or states such that there are n1, n2, ni and so on number of particles in quantum states whose approximate constant energies are u1, u2, ui respectively. So ये जो u1, u2, ui है, these are basically representing the average energies corresponding to that particular quantum state. तो ये हमारे जो levels हैं ये कितने भी हो सकते हैं, it can extend from 0 to infinity as well. ठीक है, so we have large number of particles, large number of bosons, let it be n. They are distributed in different quantum states. Each quantum state has different energy. ठीक है,
Now here what we are considering, मैंने यहाँ पे बोला था that we are considering a Bose-Einstein gas which is perfect. We are considering a perfect Bose-Einstein gas. Now what is the meaning of perfect gas? तुमने शायद already पढ़ा हो the difference between perfect और ideal gas and the real gas. हम अगर कहते हैं gas perfect है, इसका मतलब उसके अंदर जो particles present है उनके बीच में जो interaction है that is negligible. ये जो हमारे bosons हैं these are non-interacting particles. ठीक है, इफ वी आर कंसीडरिंग द गैस टू बी परफेक्ट. ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अगर पार्टिकल्स हमारे इंटरैक्टिव होंगे तो उस केस में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है वो डिफिकल्ट हो जाएंगी. उनमें हमें पार्टिकल्स की इंटरैक्शन भी कंसीडर करनी पड़ेगी. यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं they are non-interacting. That means the Bose-Einstein gas that we are considering that is filled with large number of bosons, that gas is a perfect gas. Perfect gas means the interaction between the particles is negligible. That means all the particles, they are free to move inside this gas. Interaction between the particles is negligible, so that energy may be regarded as entirely translational in character. ठीक है, the results thus obtained in this case will be applicable to a monoatomic gas. Now इसका मतलब क्या है, इसको समझने की जरूरत है. हम जो है परफेक्ट गैस ले रहे हैं, परफेक्ट बोस-आइंस्टीन गैस ले रहे हैं. इसका मतलब इस गैस के अंदर जितने भी बोसॉन्स प्रेजेंट हैं दे आर नॉन इंटरैक्टिंग इन नेचर. इंटरैक्शन जो है बिटवीन दीज पार्टिकल्स और बोसॉन्स, दिस इंटरैक्शन इज नेग्लिजिबल. इसका मतलब क्या है, जो हमारी एनर्जी है, ठीक है, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज ट्रांसलेशनल इन कैरेक्टर. ट्रांसलेशनल का मतलब क्या है, जो एनर्जी है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द motion of bosons from one location to the another. हमारे जो bosons हैं they are continuously changing their position from one quantum state to the another quantum state. Since this gas जो है हम dynamic systems ही ले रहे हैं, number of particles जो है residing in different quantum states that is changing. Since particles are dynamic, they are in continuous motion, they are in continuous random motion. तो हमारी जो एनर्जी है वो सिर्फ ट्रांसलेशनल है. दैट मींस एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ बोसॉन्स फ्रॉम वन लोकेशन टू द अनदर. हमारे इस परफेक्ट गैस में जो वाइब्रेशनल एनर्जी है दैट इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशनल मोशन. जो रोटेशनल एनर्जी है दैट इज बिकॉज ऑफ द रोटेशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, वो हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे. इफ द गैस इज परफेक्ट देन द एनर्जी विल बी ट्रांसलेशनल एनर्जी. There will be no vibrational or rotational energy present in this system. ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है we are considering a perfect gas. That means the particles are non-interacting, so the energy will be only translational in character. That means the energy will be only due to the motion of these particles from one location to the another. इसके बाद एक लाइन लिखी है, तो इस परफेक्ट गैस को जब हम स्टडी करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास लास्ट में जो रिजल्ट्स निकल कर आएंगे वो रिजल्ट्स जो है दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली टू अ मोनोएटॉमिक गैस. अगर हमारे पास कोई डायएटॉमिक गैस है तो हम उसमें जो है ये रिजल्ट्स यूज नहीं कर सकते. यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट्स निकल कर आएंगे दैट विल बी एप्लीकेबल टू अ मोनोएटॉमिक गैस ओनली. ना मोनोएटॉमिक गैस कौन सी होती है? इट इज द वन इन विच एटम्स आर नॉट बाउंड टू ईच अदर. दैट मीन्स अ मोनोएटॉमिक गैस इज अ गैस इन विच द एटम्स आर नॉन इंटरैक्टिंग. Atoms are not bound to each other. It is free of any rotational or vibrational energy. Energy जो possible है for a monatomic gas, it is only translational. It is free of any rotational or vibrational energy. In this, atoms are not bound to each other. तो इनकी जो है same property है, that is the property of a perfect gas. So we can say that the results obtained here can be easily applicable to a monoatomic gas. अब हमें पता चल गया like what kind of system we are considering. Now our next step is to start with the derivation. So here the gas is perfect. The particles that are present within the gas, they are bosons. So we can say that this perfect gas is a perfect Bose-Einstein gas. If it is a Bose-Einstein gas, then definitely it will follow the Bose-Einstein statistics. ठीक है, अगर तुम सबको याद हो, we have derived Bose-Einstein distribution law. ठीक है, वो हमें क्या बताता है? The most probable distribution of particle.
तो अगर हम कहते हैं इफ GI इज द डीजेनरेसी और स्टैटिस्टिकल वेट ऑफ ith क्वांटम स्टेट, मैंने डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स बताई थी। अगर एक पर्टिकुलर क्वांटम स्टेट में वी हैव लार्ज नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स, लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड सब एनर्जी लेवल्स, तो हर एक क्वांटम स्टेट में कितने एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट है। अगर हम फर्स्ट क्वांटम स्टेट की कह रहे हैं, सो इन फर्स्ट क्वांटम स्टेट लेट द नंबर ऑफ सब एनर्जी लेवल्स प्रेजेंट इज G1, or you can say the degeneracy or the statistical weight of the first quantum state. Similarly, if we are considering the ith quantum state, so let's say GI is representing the degeneracy or the statistical weight of the ith quantum state. That means GI is representing the number of sub energy levels present in the ith quantum state whose average energy is UI. So we are applying the Bose-Einstein distribution law for this perfect Bose-Einstein gas. So for a perfect Bose-Einstein gas, the most probable distribution is given by, हमने already निकाला था, अगर कोई भी system जो है, if it is following the Bose-Einstein statistics, then for the most probable distribution, the Bose-Einstein distribution law says that Ni is equal to Gi upon e raised to power alpha plus beta Ui minus 1, where beta is 1 upon Kt, K is the Boltzmann constant, T is the temperature. Beta हमारा क्या है? This is equal to 1 upon Kt. Now ये क्या represent कर रहा है कि ith quantum state में जो हमारी most probable डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी कौन सी होती है? द इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है, जहां पर पार्टिकल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है। हमने कंसीडर किया था ना, एक मैक्रो स्टेट ली थी n1 n2 सो ऑन अप टू nk, फिर हमने क्या किया था, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव था लॉग w का, उसको हमने सब्स्टिट्यूट किया था इक्वल टू 0, फिर हमारे पास ये एक्सप्रेशन निकल कर आई थी। तो ये एक्सप्रेशन क्या बता रही है, अगर मेरे पास एक ith क्वांटम स्टेट है जिसकी एवरेज एनर्जी UI है और उस क्वांटम स्टेट की डीजेनरेसी GI है, उसको हमने डिवाइड किया लार्ज नंबर ऑफ GI सब एनर्जी लेवल्स, सो हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट Ni particles in GI sub levels of this ith quantum state having average energy UI, ये हमें बताता है by Bose-Einstein distribution law, and this is applicable only to the bosons, that means to the particles that are obeying Bose-Einstein statistics. That means we have indistinguishable particles having zero or integral spin. तो ये हमें ऑलरेडी पता है, और हमें ये भी पता है दैट बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन Kt. एक चीज और क्या है, अल्फा जो है दिस इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन Kt. व्हाट इज म्यू? म्यू इज नोन एज द केमिकल पोटेंशियल पर पार्टिकल, ठीक है। ये एक्सप्रेशन जो है तुम्हें याद रखनी है, व्हेन वी स्टडी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स इन डिटेल, वहां पर हम यूज करते हैं अल्फा का, वहां पर हम यूज करते हैं केमिकल पोटेंशियल का। बाय डेफिनेशन अल्फा इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन Kt and beta is equal to 1 upon Kt. So now this equation number 23 can be rewritten as, if I am considering let's say D is equal to e raised to power minus alpha. जब हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स करा था तो वहां हमने सब्स्टिट्यूट किया था कैपिटल A इक्वल टू e raised to power माइनस अल्फा। तो ये जो हमारा D है यहाँ पर, ये वही है जो वहां A था हमारा when we were doing मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। तो लेट्स से D जो है हमारा दैट इज इक्वल टू e raised to power minus alpha. तो इस इक्वेशन में if I substitute D is equal to e raised to power minus alpha, then this equation becomes Ni is equal to Gi upon e raised to power beta Ui divided by D minus 1. Here we have simply substituted D as e raised to power minus alpha. This is just only for the convenience. Now, हमें ये पता है जो नंबर है पार्टिकल्स का, पार्टिकल 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, इट कैन बी एनी इन नंबर। किसी भी स्टेट में जो है या तो कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा या कितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स में हर एक स्टेट में कितने भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, 0 और 1 और मोर देन
1, ठीक है। बट ये पार्टिकल्स जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, ऑब्वियसली नंबर जो है इट कैन नॉट बी नेगेटिव, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ पर्टिकुलर स्टेट जो है इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दैट मीन्स दिस इक्वेशन जो है इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Ni जो है हमारा, दैट मीन्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिसाइडिंग इन द ith क्वांटम स्टेट दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 हो सकता है या 0 से ज्यादा हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं हो सकता। ये वाला फैक्टर हमारा ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में जो हमारी ये वाली टर्म है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर ये इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर विल बिकम 0 एंड दिस Ni becomes infinite, that means a very large number of particles. So we can say that Ni जो है it can be greater than equal to 0. So this requires जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें जो फर्स्ट फैक्टर है that should be greater than equal to 1. अगर ये फैक्टर हमारा लेस देन 1 हो गया, सपोज ये फैक्टर अगर हमारा -3 है, ठीक है, लेस देन 1 है, या you can say that let's say this factor is, ये वैल्यू जो है हमारी let's say 1/d e raised to power beta ui is 0.5, ठीक है, हम इसे पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करें, ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ, ये मत सोचो कि एक्चुअली में -3 होता है क्या, 0.5 होता है क्या, ये सब मैं यहाँ पे सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि जो फर्स्ट फैक्टर है व्हाई इट शुड बी ग्रेटर देन दिस सेकंड फैक्टर, ये इससे बड़ा इसलिए होना चाहिए, सपोज ये अगर 0.5 है e raised to power beta ui upon d, तो 0.5 माइनस 1 क्या होगा, -0.5, तो अगर डिनोमिनेटर मेरा नेगेटिव है, सो दैट मीन्स दिस होल क्वांटिटी Ni becomes negative, but Ni जो है it cannot be negative, it should be greater than equal to 0. So इसका मतलब डिनोमिनेटर में जो ये फर्स्ट टर्म है it cannot be less than 1, it should be greater than equal to 1, ठीक है। अगर हम कंसीडर कर रहे हैं लेट्स से जो हमारी लोवेस्ट क्वांटम स्टेट है द ग्राउंड स्टेट, लेट इट बी एट 0 एनर्जी। यूजुअली जब हम क्वांटम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट जो है उसकी एनर्जी 0 नहीं होती, उसकी जो एनर्जी होती है दैट इज द 0 पॉइंट एनर्जी, वो 0 नहीं होती, इट इज मोर देन 0। क्लासिकली वी कैन से दैट द लोवेस्ट एनर्जी इज द 0 एनर्जी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम एज जस्ट हम सबसे मिनिमम कितना कंसीडर कर सकते हैं, वी कैन कंसीडर इट टू बी 0। सो लेट्स से हमारी जो ये लोवेस्ट ग्राउंड स्टेट है, द फर्स्ट क्वांटम स्टेट जिसकी एनर्जी हमने U1 बताई थी, लेट्स से इट इज एट 0 एनर्जी। अगर ये 0 पे है तो उस केस में जो है हमारा फर्स्ट फैक्टर है e raised to power beta ui upon d क्या हो जाएगा, इट विल बी सिंपली इक्वल टू 1 upon d, that is e raised to power alpha. Why? Because ui, the energy corresponding to the लोवेस्ट ग्राउंड स्टेट दैट वी हैव कंसीडर्ड टू बी 0, वो हमारा 0 हो गया। तो अगर लोवेस्ट स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, 1/d e raised to power beta ui फॉर द ग्राउंड स्टेट विल बी इक्वल टू 1/d e raised to power beta ui 1 हो जाएगा सिंस ui इज 0। तो हमारे पास हो गया e raised to power alpha that is equal to e raised to power minus mu upon kt is equal to 1 upon d that is greater than equal to 1, ठीक है। ये हमारी कंडीशन होगी if I'm talking about the first quantum state, that is the ground state or the lowest energy state, if I'm considering let's say the energy corresponding to this lowest quantum state is 0, then I can have 1 upon d greater than equal to 1। इसका मतलब क्या है, देखो 1 upon d is e raised to power alpha, e raised to power alpha is greater than equal to 1। e raised to power alpha greater than equal to 1 कब होगा, when alpha is greater than equal to 0। अल्फा जब 0 होगा e raised to power 0 1 हो गया, अल्फा जब greater than 0 होगा e raised to power alpha greater than 1 होगा। So here we have the condition e raised to power alpha greater than equal to 1, so this means alpha should be greater than equal to 0 and this is equal to e raised to power minus mu upon kt। So that means जो हमारा म्यू है या माइनस साइन आ गया ना, तो अगर e raised to power minus mu upon kt जो है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, so that means mu जो है हमारा it should be less than equal to 0।
नेक्स्ट 1/d हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब d जो है हमारा दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 1। और ये जो 1/d है हमारा दिस इज इक्वल टू e रेज टू पावर अल्फा ओनली, सो दिस क्वांटिटी इज, तो अब हमारा d क्या हो गया 1/e रेज टू पावर अल्फा, सो दैट मीन्स d जो है हमारा दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास तीन कंडीशंस आई, alpha should be greater than equal to 0, mu should be less than equal to 0, and d should be greater than equal to 0 and less than equal to 1. d should be greater than equal to 0 and less than equal to 1. तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई जो हमने निकाली फ्रॉम द बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये सबको क्लियर है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हियर वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग Ni particles in Gi sub-energy levels of the ith quantum state having energy Ui. So here alpha is minus mu upon kt, beta is 1 upon kt. We know that the number of particles in any state, it cannot be negative, it should be greater than equal to 0. So that means जो हमारा denominator है that should always be a positive quantity for Ni to be greater than equal to 0. Ni जो है it cannot be negative. So for Ni to be non-negative, our denominator should be positive. So the first term जो है it should be greater than equal to 1. So here if I'm saying that if we are considering the lowest quantum state, let the lowest quantum state is having the zero energy, then in that case this expression becomes 1/d greater than equal to 1, because in this case our ui, here ui is corresponding to the lowest quantum state, so ui जो है it will be 0 and e raised to power 0 is 1, so we have 1/d greater than equal to 1. तो यहाँ से we have derived this condition, ठीक है, which should always be valid for a particle that is to be distributed in the particular quantum state or the particular energy level according to the Bose-Einstein statistics. ठीक है, तो अल्फा जो है हमारा वो हमें पता है, we can determine alpha which is equal to minus mu upon kt with the help of this condition. If n is representing the total number of bosons present in this perfect gas, then this will be equal to n1 plus n2 plus n3 so on. So that is equal to summation ni. What is ni? Gi upon e raised to power alpha plus beta ui minus 1, where e raised to power alpha can be written as 1/d. So from here we can get the value of alpha. If we know total number of particles n, then we can get this value of alpha using this condition. ये यहाँ पे बस इतना बता रहा है। तो अभी तक हमने जो किया इसमें बहुत ज्यादा जो है उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारा जो मेन डेरिवेशन है वो अब शुरू होगा। यहाँ पर बस अभी तक हमने इतना बताया कि हमारा बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, ठीक है, और पार्टिकल्स जो है वो किसी भी स्टेट में जो प्रेजेंट होंगे दे शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो कोई पार्टिकल नहीं है या कितने भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्वियसली कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हमारे पास ये कंडीशन निकल कर आई गिवन बाय इक्वेशन 3.24. Now we'll start with the main derivation. अब हम क्या consider करेंगे? Let's say these energy levels are very closely spaced. So in this case we'll replace summation by integration. जब हमारे बहुत सारे energy levels जो होते हैं they are very closely spaced, तो उस केस में हम continuum case लेते हैं। continuum case क्या होता है मैं already पहले explain कर चुकी हूँ। Here now we'll talk about interval, कि कितने इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, कितने इंटरवल के अंदर हमें पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और ये कब होता है? व्हेन वी आर कंसीडरिंग जो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं दे आर क्लोजली स्पेस्ड, इन दैट केस वी कैन रिप्लेस समेशन बाय इंटीग्रेशन। सो इफ आई एम कंसीडरिंग द एनर्जी लेवल्स आर क्लोजली स्पेस्ड वी कैन इंटीग्रेट इंस्टेड ऑफ समिंग ओवर द पार्टिकल स्टेट्स, ठीक है। तो अब हमारे पास ये बताओ जीपीडीपी क्या होता है? जीपीडीपी जो है ऑलरेडी मैंने बताया था, इट इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ फेज स्पेस सेल्स लाइंग इन द मोमेंटम रेंज p and p plus dp।
और हर एक सेल में जो है वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टिकल्स. नाउ दीज सेल्स आर एक्टिंग एज डिफरेंट एनर्जी लेवल्स where particles where we have to distribute the bosons or the particles. So we can say that GPdP is representing the number of states or the number of particle states lying in the momentum range P and P plus dP. इसकी expression जो है हमने already derive की थी. It came out to be 4 pi V P square dP upon H cube. Here H is H naught if we are talking about the classical statistics. यहाँ पर हम Bose-Einstein gas study कर रहे हैं, तो that means we are talking about the quantum statistics. और ये हमने already बताया था, अगर हमारे पास quantum system है उस केस में हमारा ये जो H है, H naught जो है, it will be H, that is the Planck's कांस्टेंट. हम जो साइज है फेस स्पेस सेल का वो हम कितना भी छोटा नहीं ले सकते. द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द फेस स्पेस सेल शुड बी H क्यूब अकॉर्डिंग टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वेयर H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिराइव किया था, तो इसी एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज करेंगे क्योंकि हम ये ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं. इस एक्सप्रेशन में एक चीज का और ध्यान देना है. देखो यहाँ पर जो है एक फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में है, दैट इज GS. GS जो है हमारा, दिस इज इक्वल टू 2S प्लस 1 और इसको हम बोलते हैं स्पिन डीजेनरेसी फैक्टर. और ये जो हमारा S है, दिस इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम. इस S को हम बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम. अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, लेट्स से सिंप्लिसिटी के लिए वी आर कंसीडरिंग S टू बी 0, तो S को अगर मैं यहाँ 0 पुट करूंगी तो GS मेरा हो गया 1. सो दिस इक्वेशन बिकम्स 4 पाई V P स्क्वायर dP अपॉन H क्यूब. जब हमने पहले ये डेरिवेशन किया था तो वहां पे हमने डीजेनरेसी फैक्टर को कंसीडर नहीं किया था, पर यूजुअली जो हमारे पास ये जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन होती है वो ये होती है. ठीक है, where GS is the spin degeneracy factor. So you can say that this is the most or more generalized expression for the number of particle states lying in the momentum range P and P plus dP. So depending upon the spin, we have this degeneracy factor. So here we are considering the spin to be 0 or the spin angular momentum to be 0. So GS becomes 1. So we'll consider the most simple एक्सप्रेशंस टू गेट द डेरिवेशन, क्योंकि हम जितना ज्यादा अपने सिस्टम को सिंप्लीफाई करेंगे उतना ही मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस जो है हमारी कम होती जाएंगी, उतना ही इजी होगा सिस्टम को मैथमेटिकली सॉल्व करना जितना हम सिंपल जो है अपना सिस्टम कंसीडर करेंगे. तो यहाँ पर simplest system that we can consider is S to be 0. So we have GS to be 1. Integral spin होता है या तो 0 है या 1, 2, 3, it can be anything. So we are considering spin angular momentum to be 0, minimum value. तो GPdP हमारा ये हो गया. So this is representing the number of particle states lying in the momentum range P and P plus dP. So what will be the number of particles lying in this momentum range P and P plus dP? हमारे पास Ni कितना था? GI upon e raised to power alpha plus beta ui minus 1. ये हमारा केस था when we are distributing particles in a particular quantum state. अब हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूम केस ले रहे हैं. कंटिन्यूम केस में ऑलरेडी बता चुकी थी पहले और वो हमने यूज भी किया था इन प्लैंक्स रेडिएशन लॉ. तो हेयर DNP जो है वो हमारा सेम है जो हम पहले ले रहे थे, दैट इज द NPdP. ठीक है, NPdP को हम DNP भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये सिर्फ एक नोटेशन है. ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइंग इन द मोमेंटम रेंज P and P plus dP. So this NPdP or DNP simply GPdP upon e raised to power alpha plus beta ui minus 1 or you can say beta u minus 1. Now अब हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो निकालने हैं. हमें इस मोमेंटम रेंज में तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल गए विच इज गिवन बाय दिस इक्वेशन नंबर 28. सो हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो उससे पहले हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. कैसे? देखो हमारे पास जो गैस है वो परफेक्ट गैस है, दैट मीन्स उसके अंदर जो बोसॉन्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, दे आर नॉन इंटरैक्टिंग, दे आर फ्री टू मूव इनसाइड दिस गैस.
particles जो है they are free. So in that case what will be the total energy of a particle, of a single particle? Energy क्या होती है हमारी? The sum of potential and the kinetic energy. और ये हमें पता है for a free particle और for a non interacting particle the potential energy is 0. पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी 0 है और जो हमारी टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी ओनली द काइनेटिक एनर्जी. व्हाई? Because we know that a free particle or a non-interacting particle is not subjected to any forces. It is free to move inside the gas. So its potential energy will be a constant quantity. Let it be 0. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? अगर हमारे पास कोई नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स होते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 या कांस्टेंट होती है. जो एनर्जी जो होगी टोटल एनर्जी दैट विल बी ओनली द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी? हाफ mv स्क्वायर. उसको वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. मोमेंटम हमारा क्या होता है? m into v. काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स p स्क्वायर अपॉन 2m. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ. So the total energy of a single particle is only the kinetic energy, that is p square upon 2m. So substitute it over here in the equation number 28. So what we'll get? Np dp or dnp becomes, substitute the value of gp dp also, 4 pi v p square dp upon h cube. This is gp dp. ठीक है, and in the denominator we have e raised to power alpha plus beta ui. Now what is ui here? ui हमारा कितना है? p square upon 2m. तो substitute here p square upon 2m and substitute beta. Beta is a constant quantity which is equal to 1 upon kt. So we'll get this expression. This is representing the number of particles lying in the momentum range p and p plus dp. 4 pi v p square dp upon h cube e raised to power alpha plus p square upon 2m kt minus 1. सिंपली हमने जीपीडीपी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, एक्सपोनेंशियल में बीटा को सब्स्टिट्यूट किया एज 1 अपॉन केटी और हमने जो है एनर्जी जो है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी पी स्क्वायर अपॉन 2m. सो वी गेट दिस इक्वेशन नंबर 30. नाउ अब क्या है हमारे पास? ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइंग इन द मोमेंटम रेंज p and p plus dp. नाउ वी हैव टू राइट दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ number of particles lying in the energy range u and u plus du. इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं? in the energy range u and u plus du. अगर मुझे p और u के बीच में रिलेशन पता है तो मैं dnp या npdp को लिख सकती हूँ as nu du. nu du का मतलब क्या है? the number of particles lying in the energy range u and u plus du. मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है मेरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज प्योरली अ फंक्शन ऑफ u. तो अगर मैं राइट हैंड साइड को u का फंक्शन कर दूं देन इट बिकम्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स लाइंग इन द एनर्जी रेंज u and u plus du. So for this I should know the relation between u and p. Then only I can convert this dp in terms of du. और वो रिलेशन मुझे पता है. I know u is equal to p square upon 2m. तो यहाँ से अगर मैं इसको निकालूं तो what will be du? u हमारा कितना है? p square upon 2m. So if I'll differentiate this equation number 29, then du will become 2p dp upon 2m. ठीक है, तो du मेरे पास कितना आ गया? p dp upon m. 2 जो है that will be cancelled out from both the numerator and denominator. ठीक है, so I'll get du is equal to p dp upon m or I can write p dp is equal to m du. ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है. p dp मेरे पास कितना है? p dp is simply equal to m into du. ठीक है, ये कुछ नहीं है यहाँ पे. तो यहाँ पर मेरे पास dp कितना आ गया? dp मेरे पास ये कुछ नहीं है. dp मेरे पास आ गया m into du divided by p. And what is p? From here p is under root 2mu. तो substitute the value of p as under root 2mu क्योंकि हमें p का कंपोनेंट जो है उसको प्योरली u के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, तो dp मेरे पास क्या आ गया? m du अपॉन अंडर रूट 2mu. m जो है उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ अब? तो dp मेरे पास अब क्या आ गया? dp इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
अंडर रूट ऑफ m अपॉन 2 इंटू यू इंटू डी। दिस इज माई डीपी। आई होप ये सबको क्लियर है। सिंपल यहाँ पर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। u मेरे पास है p स्क्वायर अपॉन 2m, तो p बिकम्स अंडर रूट 2m u। नेक्स्ट इसको मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, सो दिस गिव्स du इज इक्वल टू p dp अपॉन m। सो p dp इज इक्वल टू m into du। सो आई कैन राइट dp in terms of u. I can write momentum in terms of energy. So now substitute momentum in terms of energy in this equation number 30. तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये तो एज इट इज रहा 4 पाई v अपॉन h क्यूब। p स्क्वायर को आई कैन राइट 2m इंटू यू, वो मैंने लिख दिया। dp को आई कैन राइट अंडर रूट m अपॉन 2u इंटू डी यू, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आया, e रेज टू पावर अल्फा प्लस p स्क्वायर अपॉन 2m मेरा क्या है, द एनर्जी u डिवाइडेड बाय kt माइनस 1। So now here right hand side is in the terms of energy. It is not in terms of momentum. So now this equation is representing the number of particles lying between the energy range u and u plus du. Now I'll further simplify this equation. How? इसको मैंने लिख दिया as 4 pi v upon h cube into m। ये जो m का फैक्टर है इसको मैं इसके साथ ले गई, तो ये क्या हो गया 4 पाई एम वी अपॉन एच क्यूब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यहाँ पे न्यूमरेटर में अंडर रूट 2 है डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 है, तो 2 अपॉन अंडर रूट 2 क्या बन गया, अंडर रूट 2, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे पास अंडर रूट m है, तो इट बिकम्स अंडर रूट 2m, ठीक है। मेरे पास u का फैक्टर यहाँ पर बचा, ये u अपॉन अंडर रूट u है, तो इट बिकम्स अंडर रूट u du। तो ये मेरे पास आ गया u रेज टू पावर हाफ, दैट मीन्स अंडर रूट u du डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर अल्फा प्लस u अपॉन kt माइनस 1। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग nu du, और यू कैन राइट एज dnu, ठीक है। इसको मैंने फर्दर जो है सिंप्लीफाई कर दिया in this form given by equation number 31. I hope ये सबको क्लियर है मैंने कैसे किया। 4 पाई m को मैं यहाँ ले गई, so it becomes 4 pi mv h cube, then I have under root 2m into u raised to power half du। अब मेरे पास ये फैक्टर आ गया पूरा एनर्जी का, और ये मेरे पास दूसरा जो है कांस्टेंट फैक्टर आ गया, ठीक है। इसमें अब मैं फर्दर एक और सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ, लेट्स से x इज इक्वल टू u अपॉन kt, क्योंकि फाइनली हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, हमें इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। हमें इसे इंटीग्रेट करना है, वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो उसके लिए हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि हम d and u को इंटीग्रेट कर सकें। सो द फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन विल बी x इज इक्वल टू u अपॉन kt। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगी, देन आई गेट dx इज इक्वल टू du अपॉन kt। So if I substitute x and dx in this equation, what will I get? dnu अब मेरा क्या हो गया 4 pi mv upon h cube as it is under root 2m, u को I can write as ktx का स्क्वायर रूट इंटू du कितना है मेरा dx kt, du को मैंने पुट कर दिया dx kt डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर अल्फा प्लस u अपॉन kt मेरा क्या है x, तो e रेज टू पावर अल्फा प्लस x माइनस 1। इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करके मैंने ऐसे लिखा, देखो v अपॉन एच क्यूब को हम एज इट इज लिखेंगे, ये हमारा एज इट इज आ गया। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा है 2 पाई m kt रेज टू पावर 3/2 इंटू 2 अपॉन रूट पाई x रेज टू पावर हाफ अपॉन e रेज टू पावर अल्फा प्लस x माइनस 1 dx। मतलब हमने यहाँ से ये x का फैक्टर ले लिया, ठीक है, x रेज टू पावर हाफ, ये dx ले लिया, और ये हमने डिनोमिनेटर ले लिया e रेज टू पावर अल्फा प्लस x माइनस 1। उसके बाद हमने लिया 2 अपॉन रूट पाई और इस फैक्टर को लिखा, ठीक है। इस फैक्टर को हम कैसे लिखेंगे, देखो 2 रेज टू, यहाँ पे देखो पाई हमारे पास कहाँ पर है, एक यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, और कहीं नहीं है। kt हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये हमारा क्या हो गया kt रेज टू पावर 3/2, ठीक है। m मेरा कहाँ है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ये भी हो गया m रेज टू पावर 3/2। एक अब हमारे पास यहाँ पर जो 4 है इसको आई कैन राइट एज 2 into 2, ठीक है।
एक जो 2 है वो तो मैंने यहाँ लिख दिया, एक जो 2 है वो इस √2 के साथ मिलके बन जाएगा 2⁵ फिर मैंने √π से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहाँ डिवीजन में √π रहा और जो मल्टीप्लीकेशन में √π आएगा वो इस पाई के साथ मिलके बना देगा π⁵3/2। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 33 में क्या आ गया, 2m π/3/2 इंटू 2/√π। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है। ये कैसे आया, सिंपल हमने इसको सिंप्लीफाई किया है एक कॉम्पैक्ट एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो dnu मेरा अब किसके टर्म्स में आ गया, इट इज इन टर्म्स ऑफ dx where x is equal to u/kt। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं देन आई विल गेट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये हमारा क्या हो गया, सो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एनर्जी लेवल्स जो है हमारे दे आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड, हमारे पास जो डिफरेंट पार्टिकल स्टेट्स हैं दे आर वेरी क्लोजली स्पेस्ड। सो यहाँ पर हम समेशन dnu नहीं करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, सो n विल बी इंटीग्रेशन dnu को सब्स्टिट्यूट कर दो, v/h³ 2m π/kt⁵3/2 इंटू 2/√π इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी x⁻½ dx अपॉन e⁻α प्लस x माइनस 1। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिया देन आई विल गेट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n। नाउ लेट्स से दिस टर्म f1 alpha is 2/√π इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी x⁻½ dx अपॉन e⁻α प्लस x माइनस 1। तो इसका मतलब n अब मेरा क्या हो गया इन टर्म्स ऑफ f1 alpha, वो हो गया सिंपली v/h³ 2m π/kt⁵3/2 into f1 alpha which is given by equation number 34 and it is representing the total number of particles। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए, लेकिन अभी f1 alpha जो है इट इज स्टिल अननोन। तो अभी जो है अभी हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिखेंगे, फिर अभी जस्ट इसके बाद मैं इसको इंटीग्रेट करके दिखाऊंगी f1 alpha को विद द हेल्प ऑफ गामा फंक्शंस। आई होप तुम सबने ऑलरेडी पढ़ रखा है व्हाट इज गामा फंक्शन मैथ्स में। नाउ अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गए। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखो हमारे पास जो एक पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल दैट इज हैविंग द एनर्जी u, ni हमने लिखा, ni जो हमारा यह सिंगल पार्टिकल है उसकी हमने एनर्जी क्या लिखी थी, अगर तुम्हें याद हो अभी जस्ट इक्वेशन नंबर 29 में दिखाई देती हूँ। इक्वेशन नंबर 29 में हमने क्या देखा था, एनर्जी ऑफ अ सिंगल पार्टिकल इज u दैट इज इक्वल टू p²/2m। ठीक है, तो एक पार्टिकल जो है उसकी एनर्जी u है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितने हैं इन द एनर्जी रेंज u एंड u प्लस du, वो हमारे हैं dnu, this one। ठीक है, so this is representing the total number of particles in the energy range u and u plus du। एक पार्टिकल जो है उसकी एनर्जी जो है वो u है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी dnu पार्टिकल्स की, या टोटल एनर्जी कितनी होगी पार्टिकल्स की लाइंग इन द एनर्जी रेंज u एंड u प्लस du, वो क्या होगा u इंटू dnu। एक पार्टिकल की एनर्जी u है, टोटल पार्टिकल dnu है, तो टोटल एनर्जी क्या होगी u इंटू dnu। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टोटल एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल्स की लाइंग इन द एनर्जी रेंज u एंड u प्लस du। तो टोटल एनर्जी क्या होगी अगर हम इसको पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द इंटायर रेंज। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा dnu क्या है, देखो dnu हमारा है इन टर्म्स ऑफ dx, तो हमें u को भी लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x, और u हमें पता है इन टर्म्स ऑफ x इज kt इंटू x। तो सब्स्टिट्यूट u here as ktx and substitute the value of dnu। अब हमारे पास क्या है, ऑलरेडी एक x का फैक्टर है, dnu में हमारे पास x⁻½ है, तो x इंटू x⁻½ क्या बन जाएगा x⁻3/2। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया v/h³, इसको करेक्ट करो, यहाँ पे p नहीं आएगा पाई आएगा। ठीक है, ये एरर है, मिस प्रिंटिंग है, पाई की जगह p लिख रखा है। So this is v/h³ 2πmkt⁻3/2 into
KT इंटू 2/√π, ये KT वाला फैक्टर है ना, अब ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, तो ये फैक्टर एक्स्ट्रा है, एक KT फैक्टर एक्स्ट्रा है, एक X फैक्टर एक्स्ट्रा है, रेस्ट हमारा एज इट इज है। तो X का एक फैक्टर यहाँ पे चला गया, तो इट बिकम्स x⁵3/2, और एक यहाँ पे है ये KT का फैक्टर। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पर हमने U को सब्स्टिट्यूट किया KT इंटू X, और DNU की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी इन टर्म्स ऑफ dx। नाउ यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3/2, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3/2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, टू गेट अ मोर कॉम्पैक्ट इक्वेशन। तो अब हमारे पास u कितना आ गया, एक 3/2 का फैक्टर हमने यहाँ लिया 3/2, ये v/h³ यहाँ पर आ गया, ये 2m π/KT⁵3/2 यहाँ पर आ गया, और ये एक्स्ट्रा KT का फैक्टर जो यहाँ पर आया है ये आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, 2/√π into this integral into 2/3, that means 4/3√π into this integration, this one 4/3√π into the integration term, so let it be equal to F2 alpha। तो u हमारे पास क्या आ गया, now u is given by this expression, equation number 36। तो यहाँ पर हमें मिल गया total number of particles given by equation number 34, and we got the total energy of the system given by equation number 36। लेकिन अभी भी जो हमारी ये expressions हैं total number of particles और total energy की, ये अभी भी incomplete है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमें F1 अल्फा और F2 अल्फा की वैल्यू नहीं पता। So now what will be our next step? Our next step is to evaluate the integrals of equation number 35 and 37. That means now we have to find the value of F1 alpha and F2 अल्फा, वो अब हमें यहाँ पे निकालना है। तो हम इसमें कर क्या रहे हैं इतनी देर से, हम एक परफेक्ट बोजाइंस्टीन गैस ले रहे हैं, दैट इज फिल्ड अप विद द n बोसॉन्स, और यहाँ से जो हमारे रिजल्ट्स ऑब्टेन होंगे दैट वी कैन अप्लाई टू अ मोनोएटॉमिक गैस। ठीक है, क्या रिजल्ट्स हम निकाल रहे हैं, बेसिकली वी आर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम with the help of Bose-Einstein distribution law in the continuum case. We are considering the energy levels to be very closely spaced. ये हम कर रहे हैं। तो टोटल एनर्जी और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए अब हमारे पास सिर्फ एक स्टेप रह गया, टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स F1 अल्फा एंड F2 अल्फा। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर एक और चीज लिखी है, बोस-आइंस्टीन सिस्टम के लिए जो हमारा अल्फा है that should be positive, otherwise the value of Ni equal to Gi e raised to power alpha plus beta ui minus 1 raised to power minus 1, that is equal to Gi e raised to power beta ui upon d minus 1 का inverse would become negative at sufficiently low energies, which is physically unacceptable when alpha is positive, d is less than 1। D हमने क्या लेट किया था, D हमारा है e raised to power minus alpha। ये वही चीज फिर से रिपीट कर रहा है जो हमने इस डेरिवेशन के सबसे स्टार्टिंग में बताई थी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है हमारे दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट शुड बी पॉजिटिव। और फिर उसमें हमने देखा था फॉर सफिशिएंटली लो एनर्जीज हमने क्या कंसीडर किया था, द लोवेस्ट एनर्जी व्हेन एनर्जी इज जीरो। So when we are talking about the sufficiently low energies, that means we are talking about the lowest quantum states or the lower quantum states। उस केस में हमारा जो Ni है इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज फिजिकली अनएक्सेप्टेबल। तो Ni जो है, for Ni to be non-negative, what we should have alpha to be positive। हमने पहले निकाला था कंडीशन अल्फा हमारी क्या थी, अल्फा जो है that should be greater than equal to 0, that means alpha should be positive and d should be less than 1। इसी चीज को जो है इन्होंने यहाँ पर फिर से रिपीट किया है। तो इस कंडीशन का ध्यान रखना है और इस चीज का ध्यान रखना है कि Ni जो है हमारा ये कभी भी जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और इस चीज को यहाँ रिपीट क्यों करा है, क्योंकि अभी हमें इंटीग्रल सॉल्व करने हैं, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है दैट d जो है इट शुड बी लेस देन 1।
अगर d लेस देन 1 है तभी हम इक्वेशन जो है या जो ये इंटीग्रल है उसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले हम निकालेंगे f1 अल्फा, उसके बाद वी विल फाइंड f2 अल्फा। f1 अल्फा हमारा क्या था, इट वाज 2 अपॉन रूट पाई इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी x रेज टू पावर हाफ dx अपॉन e रेज टू पावर अल्फा प्लस x माइनस 1। इसको अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए पुट e रेज टू पावर अल्फा एज 1 अपॉन d बिकॉज वी नो d इज e रेज टू पावर माइनस अल्फा, तो e रेज टू पावर अल्फा हो गया 1 अपॉन d। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय e रेज टू पावर माइनस x। e रेज टू पावर माइनस x से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो हमारे पास क्या आ गया 2 अपॉन रूट पाई इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी x रेज टू पावर हाफ, इसको एज इट इज लिखा, एक ये टर्म आ गई e रेज टू पावर माइनस एक्स और ये dx जो है हमारा यहाँ पर लिखा है। अब हमारे पास टर्म क्या बची, डिनोमिनेटर का अगर मैं एलसीएम लूंगी और मल्टीप्लाई करूंगी e रेज टू पावर माइनस एक्स से तो मेरे पास क्या आएगा 1 माइनस डी e रेज टू पावर माइनस एक्स। डिनोमिनेटर मेरा क्या आएगा 1 माइनस डी e रेज टू पावर माइनस एक्स। मैंने d जो है एलसीएम ले लिया और मल्टीप्लाई करा डिनोमिनेटर को e रेज टू पावर माइनस एक्स से, तो मेरे पास ये डिनोमिनेटर आ गया। अब ये जो d है मेरा ये ऊपर चला जाएगा तो d मेरा यहाँ आ गया और 1 अपॉन ये डिनोमिनेटर है ना, तो 1 अपॉन 1 माइनस d इंटू e रेज टू पावर माइनस एक्स को आई कैन राइट एज 1 माइनस d e रेज टू पावर माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 1। आई होप ये सबको अब क्लियर है, ये स्टेप कैसे आया, यहाँ से सिंपली मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है बाय e रेज टू पावर माइनस एक्स। नेक्स्ट अब मेरे पास ये ब्रैकेटेड टर्म क्या है 1 माइनस some quantity raised to power minus 1 and this d is less than 1, so we can binomially expand this. What is the binomial expansion of 1 minus x raised to power minus 1? 1 plus x square plus x cube and so on। ठीक है, वही हमने यहाँ किया, तो 1 plus x यहाँ पर क्या है मेरा d e raised to power minus x, तो 1 plus d e raised to power minus x plus d square e raised to power minus 2x plus so on, ये मेरे पास आया। now this we have to integrate, तो इसको अब मैं प्लस साइन है यहाँ ब्रैकेटेड टर्म में, तो अब इन सारी टर्म्स को मैं सेपरेट आउट कर लूंगी, तो मेरे पास क्या आया 2 अपॉन रूट पाई इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। पहली टर्म क्या है इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी x रेज टू पावर हाफ e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू डी dx प्लस सेकेंड टर्म क्या होगी, ये तो एज इट इज है x रेज टू पावर हाफ, यहाँ पर e रेज टू पावर माइनस एक्स है, यहाँ पर भी e रेज टू पावर माइनस एक्स है, तो इट बिकम्स e रेज टू पावर माइनस 2x dx, d into d will become d square plus so on। ठीक है, सिंपली हमने अब इन सारी टर्म्स को सेपरेट आउट कर दिया, तो ब्रैकेट में जितनी भी टर्म्स है उनको जब सेपरेट आउट करोगे तो हर एक टर्म के साथ ये जो चीज है कॉमन है, तो ये मल्टीप्लाई होगी विद dx, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो अब हर एक इंटीग्रल को हमें सेपरेटली इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो 2 अपॉन रूट पाई एज इट इज है। नाउ वील प्रोसीड विद द फर्स्ट इंटीग्रेशन। देखो एक तरीका जो है इन्होंने यहाँ बुक में दे रखा है टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड इंटीग्रल, तो तुम्हारी मर्जी है, यू कैन यूज द स्टैंडर्ड इंटीग्रल एंड इंटीग्रेट इट। एग्जाम में जो है टाइम कम होगा तुम्हारे पास, ये डेरिवेशन लेंथी होता है, तो बेशक इंटीग्रेशन जो है वो शो करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें डायरेक्टली ये स्टेप पता है देन यू कैन डायरेक्टली राइट दिस स्टेप, बट यू शुड नो द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होता है यूज द स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ये तो सिंपल है। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज करना है, वैल्यू जो है पुट करनी है। दूसरा तरीका हमारा क्या होता है यूजिंग गामा फंक्शन। गामा फंक्शन हमारा क्या होता है, ये होता है गामा फंक्शन इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी e raised to power minus x x raised to power n minus 1 dx is equal to gamma n। अगर मेरे पास कोई भी इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है तो उसको मैं इंटीग्रेट कर सकती हूँ और उसका इंटीग्रेशन होता है इक्वल टू गामा एन। और गामा एन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं ये मैं अभी बताऊंगी। सबसे पहले देखो फर्स्ट इंटीग्रेशन है x रेज टू पावर हाफ e रेज टू पावर माइनस एक्स dx। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा अगर मैं गामा फंक्शन अप्लाई करूं तो हमारा n माइनस 1 कितना है हाफ, n माइनस 1 इज हाफ x की पावर,
तो n यहाँ से कितना हो गया 3/2। सो ये मेरा जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है, this one 0 से infinity e raised to power minus x x raised to power half dx, here n minus 1 is half, ये मेरा आया gamma 3/2। gamma 3/2 को I can write as half gamma half। ये प्रॉपर्टी होती है गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। यहाँ पर हमारा n प्लस 1 अगर 3/2 है तो मेरा n क्या होगा, if n plus 1 is 3/2 then n is 3/2 minus 1 that is half। ये मेरा हो गया हाफ गामा हाफ, और गामा हाफ जो है इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है रूट पाई। तो मेरे पास फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई रूट पाई अपॉन 2। तो यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया d इंटू रूट पाई अपॉन 2। d को यहाँ पर हम अंदर ले गए, ये मेरे पास आ गया रूट पाई अपॉन 2। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन जो है वो मेरा आया d इंटू रूट पाई अपॉन 2 विद द हेल्प ऑफ गामा फंक्शन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नाउ वील इंटीग्रेट दिस सेकंड टर्म विद द हेल्प ऑफ गामा फंक्शन। ये हमारी सेकंड टर्म क्या है, 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस 2x इंटू x रेज़ टू पावर हाफ dx। तो यहाँ पर इसको हमें लिखना है इन द फॉर्म ऑफ गामा फंक्शन। तो e रेज़ टू पावर हमें माइनस 2x को रिप्लेस करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ माइनस x। तो लेट्स से 2x इज t, तो 2dx क्या हो गया मेरा dt, इसमें सब्स्टिट्यूट करो, इट बिकम्स इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस, अब ये t हो गया, x को I can write as t upon 2, तो t upon 2 का स्क्वायर रूट इंटू dx को I can write as dt upon 2। तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, तो ये आया 1/2 रूट 2 इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस t रेज़ टू पावर हाफ dt। अब ये गामा की फॉर्म में आ गया ना, e रेज़ टू पावर माइनस x x रेज़ टू पावर n माइनस 1 dx। तो यहाँ पर मेरा n माइनस 1 क्या है, हाफ। ठीक है, तो मेरे पास n माइनस 1 जब हाफ होता है तो इंटीग्रेशन क्या है, रूट पाई अपॉन 2। तो इसकी इंटीग्रेशन आ गई रूट पाई अपॉन 2। तो मेरे पास ये क्या आ गया, रूट पाई अपॉन 2 इंटू 1/2 रेज़ टू पावर 3/2। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस सेकेंड इंटीग्रल। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन में क्या है, डी स्क्वायर। तो रूट पाई अपॉन 2 को आई कैन टेक कॉमन, रूट पाई अपॉन 2 कॉमन ले लिया, इसमें भी रूट पाई अपॉन 2 है फर्स्ट टर्म में भी। तो रूट पाई अपॉन 2 को जब हम कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में मेरे पास क्या आया, ब्रैकेट में आया d अपॉन 1 रेज़ टू पावर 3/2। मैं इसको 3/2 के टर्म्स में लिख रही हूँ, इसलिए यहाँ पर 1 रेज़ टू पावर 3/2 कर दिया, एक ही बात है। ठीक है, 1 रेज़ टू पावर 3/2 इज ऑल्सो 1 प्लस डी स्क्वायर, और क्या फैक्टर आया 2 रेज़ टू पावर 3/2 प्लस सिमिलरली जब आगे इंटीग्रेट करोगे थर्ड टर्म को तो यू विल गेट रूट पाई इंटू 1/2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3/2। तो हमारे पास ये फैक्टर आ गया। तो मैं अब ये जो 2/√पाई है इट विल नाउ बी कैंसल्ड आउट विद दिस रूट पाई अपॉन 2। तो मेरे पास ये क्या आ गया, d प्लस डी स्क्वायर अपॉन 2 रेज़ टू पावर 3/2 प्लस डी क्यूब अपॉन 3 रेज़ टू पावर 3/2 प्लस सो ऑन। ठीक है, इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो अगर याद है एक्सप्रेशन, नहीं तो इंटीग्रेशन जो है करके भी शो कर सकते हो। दो वेज हैं, एक तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल यूज करके, दूसरा तरीका है विद द हेल्प ऑफ गामा फंक्शन। आई होप मैथ्स में तुम लोग गामा फंक्शन अभी पढ़ चुके हो, अगर पढ़ चुके हो तो दीज इंटीग्रेशंस आर वेरी सिंपल फॉर यू। सो इसको मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, समेशन d रेज़ टू पावर r अपॉन r रेज़ टू पावर 3/2 वेयर r इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। इसको अगर मैं एक्सपैंड करूंगी देन आई विल गेट दिस वैल्यू ओनली। अगर मैं r को एक्सपैंड करूंगी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी आई विल गेट ओनली दिस एक्सप्रेशन। सो from here we got the value of f1 alpha, which is summation d raised to power r upon r raised to power 3/2 where r is going from 1 to infinity. Now we'll have to calculate the second integral. We have to evaluate the second integral f2 alpha, which is equal to 4/3 root pi इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी x रेज़ टू पावर 3/2 dx अपॉन e रेज़ टू पावर अल्फा प्लस x।
-1। अब ये देखो हमारा जो F2 अल्फा है, इसमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने e रेज टू पावर अल्फा को एज 1/d। अब हम इसको फिर से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे जैसे हमने F1 अल्फा को लिखा था, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आई। ठीक है, देखो ये इन्होंने यहाँ डायरेक्टली लिखा है, ये कैसे लिखा है, जैसे हमने F1 अल्फा किया था। देखो F1 अल्फा और F2 अल्फा में क्या डिफरेंस है, F1 अल्फा और F2 अल्फा जो है उसमें इसका डिफरेंस है, यहाँ x रेज टू पावर 3/2 है, यहाँ पे x रेज टू पावर हाफ है, एक ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2/√पाई है और यहाँ पर हमारा 4/3√पाई है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, रेस्ट हमारा सेम है। तो इसको जब हमने एक्सपैंड किया था हमारे पास ये वाली टर्म आई थी, तो इस टर्म में अब ये जो x रेज टू पावर हाफ था ये x रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा, रेस्ट सेम है, और ये जो 2/√पाई है हमारा ये हो जाएगा 4/3√पाई। तो 2/√पाई को हम लिखेंगे F2 अल्फा में 4/3√पाई। ठीक है, और x रेज टू पावर हाफ को हम लिख देंगे x रेज टू पावर 3/2। रेस्ट हमारा सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ गए इस वाली टर्म पे। ठीक है, यहाँ 2/√पाई को हमने F2 अल्फा में रिप्लेस किया बाय 4/3√पाई। ठीक है, और यहाँ x रेज टू पावर हाफ जो है जहां पर, वहां पर हमने लिखा x रेज टू पावर 3/2। तो हमारे पास आ गई ये इक्वेशन। देखो अगर तुम लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा मैं जो बोल रही हूँ, जब तक इसको खुद से कॉपी में करके नहीं देखोगे ये चीजें इतनी आसानी से क्लियर नहीं होंगी। सिंपल है, बट एक बार खुद से करने की जरूरत है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थोड़ी ज्यादा है, बट ये कैलकुलेशंस जो है सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, सो नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू सॉल्व दीज इंटीग्रल्स। ये इंटीग्रल्स अगर हमने सॉल्व कर दिए देन वील गेट द वैल्यू ऑफ F2 अल्फा। तो इसके भी दो तरीके हैं, एक तो है यूज द स्टैंडर्ड इंटीग्रल एंड डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। एक तरीका क्या है, टू यूज द गामा फंक्शन। यहाँ मैं पहला बता देती हूँ, देखो ये है मेरा 0 to infinity x रेज टू पावर 3/2 e रेज टू पावर -x dx। यहाँ पर मेरा n-1 क्या है, 3/2, तो n मेरा क्या आ गया 5/2। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ, with the help of gamma function the integration is gamma 5/2, and we know the property gamma n plus 1 is n gamma n. तो gamma 5/2 can be written as 3/2 gamma 3/2, gamma 3/2 can be written as 1/2 gamma 1/2। गामा हाफ की वैल्यू हमें पता है √पाई होती है, तो इस फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू आई 3/4√पाई। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा 3/4√पाई इंटू डी, ऐसे हमने बाकियों की निकाली ना। हर एक में 3/4√पाई कॉमन होगा हर एक इंटीग्रेशन में, सो इट विल बी cancelled out with this common term 4/3√pi. So what we'll get over here, we get d plus d square upon 2 raised to power 5/2 plus d cube upon 3 raised to power 5/2 and so on. So in the summation form it can be written as summation d raised to power r raised to power 5/2, where r is going from 1 to infinity. So this is representing the value of the integral f2 alpha. तो यहाँ से क्या है, we have solved the integrals f1 alpha and f2 alpha. So if we have evaluated f1 alpha and f2 alpha, then that means we have obtained the expression for the total number of particles and total energy for the perfect Bose-Einstein gas. फर्क कितना आया f1 alpha और f2 alpha में, f1 alpha में यहाँ r raised to power 3/2 था, यहाँ पे r raised to power 5/2 आया. So now substitute these f1 alpha and f2 alpha in the expression of total number of particles and total energy. तो n हमारा क्या आ गया, v upon h cube 2m pi kt raised to power 3/2 into this summation, and this summation is d plus d square upon 2 raised to power 3/2 plus d cube upon 3 raised to power 3/2 and so on.
ठीक है। सो इफ आई टेक d कॉमन तो n मेरा क्या आ गया, v अपॉन h क्यूब 2m pi kt raised to power 3 upon 2 into capital D, in the bracket I have 1 plus d upon 2 raised to power 3 upon 2 plus d square upon 3 raised to power 3 upon 2 plus so on, ठीक है। So here I have simply substituted the value of f1 alpha, then उसको फिर मैंने यहाँ पर खोल दिया। नेक्स्ट द टोटल एनर्जी, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ F2 अल्फा हियर, यहाँ पर इसको ठीक करो, यहाँ पे I नहीं आएगा R आएगा, R is going from 1 to infinity. Now expand this summation, तो यहाँ पर भी हमने D कॉमन ले लिया, I get this expression. So this is the total number of particles, this is the total energy for a Bose-Einstein gas or for a perfect Bose-Einstein gas. Perfect word use करना जरूरी है, ठीक है। Now what will be our next step? We'll divide equation 3.41 by equation 3.40. So on dividing equation number 3.14 by equation 3.40, what we'll get, U upon N, ठीक है, where U is the total energy and N is the total number of particles. Now this will be equal to now 3 upon 2 kT into, क्या चीजें कैंसिल आउट होंगी, देखो N और U में क्या कॉमन है, एक तो ये कॉमन है V upon H क्यूब 2m pi kT raised to power 3/2, ठीक है, ये चीज कैंसिल आउट होगी। दूसरा क्या कॉमन है, दिस कैपिटल D. So what we get now, 3 upon 2 kT, this is 3 upon 2, this is the kT, 3 upon 2 kT into the bracketed term divided by n. n में हमारे पास क्या बचा, n में हमारे पास बचा only this square bracket term, रेस्ट जो है वो कैंसिल आउट हो गई with the common factors in the expression of the capital U. तो हम जो डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है n की, उसको न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं विद द रेज टू पावर -1, ठीक है। तो हमारे पास u अपॉन n क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। सो व्हाट विल बी u नाउ, n को हम ले जाएंगे टू द राइट हैंड साइड, तो u बिकम्स 3 अपॉन 2 n kt इनटू दिस फर्स्ट ब्रैकेट टर्म एंड दिस सेकंड ब्रैकेट टर्म। अभी जो सेकंड ब्रैकेट टर्म है इसको हम बाइनोमियली एक्सपैंड करेंगे। क्यों कर सकते हैं हम, बिकॉज वी नो दैट d इज लेस देन 1, ये हमें पता है कि जो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। सो फॉर दैट दिस इज द कंडीशन, दैट इज d शुड बी लेस देन 1। तो अगर d हमारा लेस देन 1 है तो d स्क्वायर और छोटा होगा, 1 से d क्यूब और छोटा होगा, so that means this factor is very less than 1, so we can expand this binomially. तो binomial expansion क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, 1 plus x raised to power -1 का binomial expansion होता है 1 minus x plus x square minus x cube plus x4 so on. तो यहाँ पे जो हमारा x है ये बहुत बिगर टर्म है, ये x हमारा पूरा है, दिस इज गोइंग अप टू द इंफिनिटी। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, 1 माइनस x, मतलब ये जो हमारी सारी टर्म्स है इनमें माइनस साइन आ जाएगा, 1 माइनस d अपॉन 2 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 माइनस d स्क्वायर अपॉन 3 रेज टू पावर 3 अपॉन 2 एंड सो ऑन। इसी तरीके से फिर हमारे पास x स्क्वायर टर्म्स आएंगी, देन x क्यूब टर्म्स आएंगी एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, 3 अपॉन 2 n kt इनटू, ये हमने लिखा दिस इज गोइंग टू इंफिनिटी, दिस इज आल्सो गोइंग टू इंफिनिटी, सो वी विल गेट। तो अब तुम्हें क्या करना है, देखो इस स्टेप के बाद, ठीक है, ये वाला स्टेप लिखना है, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, जो टोटल एनर्जी है हमारी, द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम्स आउट टू बी दिस, ठीक है। ये यहाँ पर नहीं लिखा, ये तुम लोगों को लिखना है, इसको स्किप नहीं करना। इस इक्वेशन में क्या करोगे, अब जो ब्रैकेटेड टर्म्स हैं इनको सॉल्व करना है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, जब 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 1। देन तुम्हें क्या करना है, देखो d की पावर्स कहाँ कहाँ पे, d की फर्स्ट पावर, इस d अपॉन 2 रेज टू पावर 5/2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट d 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 5/2,
ठीक है, एक टर्म और कौन सी आ रही है डी के फैक्टर में, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -1/2⁵ इंटू डी। बाकी जो है हमारे डी स्क्वायर बन जाएंगे। ठीक है, तो वो हमारी स्क्वायर टर्म्स है। तो डी में हमारे पास क्या आया ब्रैकेट में 1/2⁵ माइनस 1/2⁵, इसमें से मैं कॉमन ले लूंगी 1/2⁵, तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या रहा 1/2 माइनस 1। सो दिस गिव्स -1/2⁵ इंटू कैपिटल डी, जो हमने यहाँ पर लिखा -d/2⁵/2। इसी तरीके से हमारे पास डी स्क्वायर की टर्म्स भी आएंगी। ठीक है, डी स्क्वायर की टर्म्स को जब तुम ऐड करोगे देन यू विल गेट -1/3⁵/5/2। ठीक है, इसको सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, क्योंकि डी स्क्वायर की टर्म देखो यहाँ से भी आएगी जब हम इसका एक्स स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा ना, और एक्स स्क्वायर को सॉल्व कैसे करोगे, सारी टर्म्स का, ये पूरा हमारा एक एक्स है इसका स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पर जो है तुम्हें उसको मैथमेटिकली शो करने की जरूरत नहीं है। पहले एक ये स्टेप लिखोगे, उसके बाद ये स्टेप लिख देना। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली यू कैन राइट दिस स्टेप। The total energy of the system in terms of total number of particles comes out to be 3/2 nkt into 1 minus d/2⁵ minus d square upon 3⁵ and so on. ठीक है, now next, the value of alpha and capital D can be determined by equation 3.34 or 3.40. कैपिटल डी हमारा क्या है, दिस इज e⁻⁻α। तो इस डी की वैल्यू जो है उसको हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। यही यहाँ पर कहता है, दैट इज हमारा ये जो टर्म है पूरा, दिस इज f1 अल्फा। ठीक है, ये हमारा f1 अल्फा है ना। कैसे निकालेंगे डी की वैल्यू, देखो f1 अल्फा हमारा क्या है, दिस इज इक्वल टू समेशन डी आर अपॉन r⁻3/2 and that is equal to in terms of total number of particles, यहाँ पे this f1 alpha, this is f1 alpha ना, this is equal to n into h cube upon v upon into 2m pi kt⁵3/2। f1 alpha जो है it comes out to be nh cube upon v into 2m pi kt upon into f1 alpha जो है it comes out to be nh cube upon v into 2m pi kt⁵3/2, and this f1 alpha in terms of total number of particles is obtained from the equation 3.40। जो हमारी ऊपर इक्वेशन आई है वहां पर जो हमारी ये पूरी ब्रैकेटेड टर्म है in terms of d including this d, this is representing f1 alpha. So from here we can write f1 alpha in terms of n. So now here, from here what we can see, from here we can see that ये जो हमारा f1 alpha है, this is proportional to this n upon v। n हमारा क्या है, total number of particles, v क्या है, volume, so this is representing the number density n upon v, and inversely proportional to temperature raised to 3/2। तो ये f1 alpha जो हमारा आता है, this is directly proportional to n upon v and inversely proportional to the t⁻3/2। and if we consider only the first term in equation 3.40, मतलब ये जो हमारी इक्वेशन थी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की, इसमें हम सिर्फ रिटेन करें ओनली अप टू द फर्स्ट टर्म, ये जो सारी टर्म्स हैं हायर ऑर्डर टर्म्स इन्हें नेग्लेक्ट कर दें, because we know that d is less than 1। So if I am considering that d is very less than 1, then in that case we can neglect the higher order terms in f1 alpha, and our f1 alpha is simply be equal to d। आई होप ये सबको क्लियर है। ये जो मेरी टर्म है दिस इज f1 alpha, इसको I can write as this। इसमें I have neglected the higher order terms if d is very less than 1 and I'm retaining only up to the first term। So f1 alpha जो है it will be equal to d। So substitute here f1 alpha as d। तो मेरा ये क्या आ गया, equation number 43 becomes
D is equal to n upon V into h cube upon 2m pi kt raised to power 3 upon 2. तो यहाँ से हमें मिल गया the value of capital D. Obviously जो है D जो है would be small for high temperatures or low density or classical limit. यहाँ से D हमें क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ D जो है वो कम होगा. D हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर डेंसिटी के n अपॉन v. तो अगर ये n अपॉन v कम होगा फॉर लो डेंसिटी d हमारा स्मॉल होगा एंड फॉर हाई टेम्परेचर्स d भी हमारा स्मॉल होगा. ठीक है. सो नाउ this is the expression of the total energy. Now we'll write this expression of total energy by substituting the value of D in this expression, considering D to be very, very less than 1. अगर D हमारा very, very less than 1 है, only then we can replace F1 alpha by D, since we have ignored or neglected the higher order terms in D. तो U हमारा कितना हो गया 3 upon 2 n k t ब्रैकेट में 1 minus 1 upon 2 raised to power 5 upon 2 into capital D substitute कर दो nh cube upon v into 2m pi kt raised to power 3 upon 2 minus इसको करेक्ट करना, यहाँ पे 1 आएगा minus 1 upon 3 raised to power 5 upon 2 into d square. ठीक है. D हमारा है given by this equation number 44, इसका स्क्वायर कर दो, so you will get nh cube upon v into 2m pi kt raised to power 3 by 2 का whole square, and this T is the capital T. ठीक है. So this is the final expression of total energy of the system. Now nk जो है we can write in terms of R if n is the Avogadro number and R is the gas constant. So for 1 gram molecule of the gas, nk जो है that will be equal to R, where R is the gas constant, K is the Boltzmann constant, N is the Avogadro's number. So this becomes this expression capital U, that is equal to 3 upon 2 R2 into this curly bracketed term, and this is for the 1 gram molecule of the gas. And let's say this bracketed term is eta, so we can directly write the total energy of the system in this form. तो देखो अब हमारी expression कितनी compact हो गई. It is just 3 upon 2 RT into eta, where eta has been substituted for the bracketed term. आई होप यहाँ पे सबको डेरिवेशन क्लियर है. यहाँ पर हमने क्या किया, बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को कंटिन्यूम केस में लगाया फॉर अ परफेक्ट बोस-आइंस्टीन गैस. फिर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम रेंज P एंड P प्लस dp को लिखा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द एनर्जी रेंज U एंड U प्लस du. And these particles are non-interacting, so हमने substitute की that energy of each particle is equal to p square upon 2m, that is only the kinetic energy, no potential energy. फिर उसके बाद हमने total number of particles लिखे in terms of F1 alpha, total energy of the system लिखी in terms of F2 alpha. फिर हमने F1 alpha और F2 alpha को integrate किया, उसको substitute किया, then we got the total number of particles and total energy of the system. फिर हमने total energy of the system निकाला in terms of total number of particles given by this expression. उसके बाद हमने F1 alpha को substitute किया equal to D for D very very less than 1, and from this equation, the equation of total number of particles given by equation number 40, we got F1 alpha equal to D as this. So here we have substituted the total energy in terms of number of particles. Bracketed term जो है हमारे पास उसमें भी हमने D को लिख दिया in terms of N. So from here we can say that D जो है it is directly proportional to N upon V and inversely proportional to T raised to power 3 by 2. So D is small for high temperatures and low density. फिर हमने final expression लिखी total energy की in terms of gas constant R and eta, where R is substituted for the bracketed terms and we have replaced Nk is equal to R for 1 gram molecule of the gas. Okay, so here we have completed our unit 2. So from the next class onwards, we'll start with the last unit of statistical physics, that is the unit 3.